Hello everyone. Today in our session number 4 of unit 14 biomolecules, we have studied about the configurations of monosaccharide. As we know that in our last sessions, open chain structure of glucose, which can be proposed by a Bayer with a various evidences, right? Like a molecular formula, straight chain, presence of an carbonyl as well as aldehyde group, presence of 5-hydroxyl group, and out of this 5-hydroxyl group, one is primary alcohol group. And according to this, we know that the 4 chiral carbon that can be seen in the case of glucose. So different types of 16 stereoisomeric forms that we have to observe, and the exact space arrangement of the different OH group was firstly determined by Emil Fischer, a German scientist, in 1891, and for his remarkable piece of research work, for which he got a Nobel Prize in 1902. So now today we studied about the configurations of monosaccharide. Firstly, we are focusing on the correct name of glucose. The correct name of the glucose is capital D plus glucose. Here the D is a configuration, plus or minus sign is due to the orientation, which can be measured practically with the help of polarimeter. It means that it's a dextro. Some students who having idea that this D is dextro. No, this D is not for dextro, but this plus is for dextro, and this plus or minus sign which can be determined only practically, and this DL which can be determined with the help of glyceraldehyde structure firstly given by the Emil Fischer. So it's a D plus glucose. So the correct name of the glucose is D plus glucose. We know that the glucose is an optically active compound, right? Because they're having a 4 different chiral carbon. Therefore, it's enantiomer, right? So enantiomer of D plus glucose is L minus glucose, right? This is not for LEO, but this minus is for LEO, okay? So the letter capital D and L used before the name of glucose, right, represent the configuration of the hydroxyl group at the penultimate carbon atom. Penultimate means last but one, okay, carbon atom of the carbon chain, whereas the algebraic sign, this plus or minus within brackets after the letters capital D and capital L, refer to the sign of optical rotation. This optical rotation means plus means dextro-rotatory and minus means levo-rotatory, right? Here it may be noted that D configurations may be either dextro-rotatory or levo-rotatory. D का यहाँ पे जो मीनिंग है वो कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जुड़ा हुआ है. D आइदर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है पोलरिमीटर में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास डी ग्लूकोज है, मेरे पास डी ग्लूकोज है. सो दिस डी ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी विद द हेल्प ऑफ दिस पोलरिमीटर. इसके सिवा मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है डी फ्रुक्टोज है, जो कीटो हेक्सोस की जो एक उसका आइसोमर है डी फ्रुक्टोज, वो कैसा है तो कि वो लीवो रोटेटरी है. इसका मतलब आप ऐसा कुछ मत समझिए कि कैपिटल डी है यानी प्लस है और कैपिटल एल है या माइनस है. देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन डी एल एंड स्मॉल डी एल. ये स्मॉल डी एल बिल्कुल अलग है, वो प्रैक्टिकल से ही पहचाना जा रहा है, वो पोलरिमीटर से ही हम इसको फाउंड कर सकते हैं, ठीक है. अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और बात आपको अभी पहले मैं आपको DL कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं समझाना चाहता हूँ. DL कॉन्फ़िगरेशन, अभी आज के दिन में ये DL कॉन्फ़िगरेशंस की लिमिटेशंस है वो चल नहीं रहा है. इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इन द केस ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे भी रुका हुआ है. फिर उस आगे के लिए तो RS हमें कॉन्फ़िगरेशंस में ही हम अपना काम कर सकते हैं. So here capital D and L configurations to monosaccharide, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमें मालूम है simplest member of the carbohydrate family is monosaccharide, and in monosaccharide family the simplest member is a triose, aldotriose, and in this aldotriose first member is a glyceraldehyde, right? So how to write Fischer projections of glyceraldehyde? So they can given the glyceraldehyde structure in this
minor H and OH. This is chiral in nature. Okay, so this is nothing but it's a D plus glyceraldehyde. D plus glyceraldehyde. ओके, कैसे उसको डी बताया हुआ है, देखिए आप टर्मिनल है उससे एक पॉइंट ऊपर जाके कीराल कार्बन में OH की पोजीशन देखिए, ऑन योर राइट हैंड साइड है तो हम इसको कैपिटल डी बोलेंगे। ये प्लस हमारे ये प्रैक्टिकली हमें प्रूव हो रहा है, ये प्लस हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसकी जो मिरर इमेज है, जैसे हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ पे फिर से आप देखिए, यहाँ पे तो CHO है, यहाँ पे CH2OH है, ये कायरल कार्बन है, तो ये क्या है तो कि L है, दिस इज माइनस एंड ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से मिरर इमेज से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वन, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लिसरल्डिहाइड विच इज चूजन एज अ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है तो वो एमिल फिशर ने उसका ही स्टैंडर्ड लिया हुआ है उसको ही। तो इट कंटेन्स वन कायरल कार्बन एंड हेंस एग्जिस्ट इन द 2 एनेंटियोमेरिक फॉर्म which is shown at here. Okay, so all the compounds which can be chemically correlated to dextroisomers of glyceraldehyde are assigned as a capital D configurations, where all those compounds which can be correlated to minus isomer of glyceraldehyde are assigned as a L configurations. वो उस तरह से उस दिन उसने ऐसा कुछ कहा हुआ था, लेकिन हमें तो अभी इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशंस। तो इन द मोनोसैकेराइड D configuration is assigned in such a way that if the hydroxyl group at the last chiral carbon, like that in the case of D plus glyceraldehyde, so lies towards right hand side. On the other hand, it is assigned L configurations if the hydroxyl group right on the last chiral atom like that in the L glyceraldehyde on the left hand side. So for making this comparison, the structures of the monosaccharides are written in such a way that most अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस तरह से हमें लिखना है। वो एमिल फिशर का पूरा इसका प्रोजेक्शंस उसने दिया हुआ था कि आपके पास कायरल कार्बन सेंटर में आना चाहिए, ऊपर और नीचे। तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप आपको ऊपर रखना है, लोअर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप आपको कहाँ पे नीचे रखना है। सो ओके, सो फॉर मेकिंग द कंपैरिजन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर रिटन इन सच अ वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन राइट हियर इन दिस केस CHO इज एट द टॉप। सो इन द लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन, तो मैं आपको कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल्स और भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास है यहाँ पे CHO है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है H और OH, सेम वे यहाँ पे भी मैंने H और OH रखा हुआ है, सेम वे यहाँ पे भी मैंने H और OH रखा हुआ है, और यहाँ पे है CH2OH। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है D माइनस रिबोस। क्या है ये? रिबोस सुगर है जो हम RNA में पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए वो D है, यस, क्योंकि इसके ऊपर का जो मुझे देखा है वो कायरल है, और OH कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में है, तो उसको हम कैपिटल D बोल रहे हैं। ये पोलरीमीटर डिसाइड कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल, यही एग्जांपल फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं। सो इन द केस ऑफ दिस कंपाउंड हियर H एंड H, ओके, दूसरा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है H और OH, और तीसरा मैंने यहाँ पे रखा, देखिए ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, ये रिबोस का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ से O नहीं है, यानी मैंने निकाल दिया है, ये 2 नंबर की पोजीशन से ऑक्सीजन नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 2-डीऑक्सी, 2-डीऑक्सी, D, ये तो D है ही, ठीक है, वो रिबोस है। यानी जो रिबोस का स्ट्रक्चर है वो कैपिटल D है, यस। देखिए आप लास्ट में से एक ऊपर, जो इसको हम पेनल्टीमेट पोजीशंस बोलते हैं, राइट। सो और उसके आप OH देखिए, तो OH राइट हैंड साइड पे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल D बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल्स यहाँ पे भी आपको देना चाहता हूँ जिसमें हम काफी इंटरेस्टेड है। HOH है, यहाँ पे देखिए आप OH है, फिर से आप देखिए यहाँ पे H और OH है, फिर से आप देखिए यहाँ पे भी H और OH है, ओके, और यहाँ पे क्या है? CH2OH। तो आप देखिए यहाँ पे ये है D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, D प्लस ग्लूकोज। और इसका जो मिरर इमेज हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए मैं इसका मिरर इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मिरर इमेज क्या है? मेरा CHO है, देखिए आप यहाँ पे
यहाँ क्या है, CH2OH है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक OH है और H है, फिर यहाँ पे क्या है, H है और OH है, ठीक है। यहाँ पे OH है और H है, और इसका भी यहाँ पे OH है और H है। सो इट्स अ मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। सो वो क्या होगा, L माइनस ग्लूकोज होगा, L माइनस ग्लूकोज, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं कैपिटल डी और एल का क्या बात कर रहा हूं। देखिए ये जो नेचर में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी नेचर में जो भी मोनोसैकेराइड्स हम दिख रहे हैं, नेचर में माइंड वेल सिंथेटिकली नहीं है, ठीक है। तो नेचर में जो भी है वो कैपिटल डी है, यानी ये जो एल ग्लूकोज है ना वो नेचर में नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं एल ग्लूकोज। आपको कुछ यहाँ पे कोई आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कैपिटल डी ग्लूकोज और कैपिटल एल ग्लूकोज दोनों का जो हम कलर, ऑर्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वॉट एवर, डेंसिटी आप देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, सभी एक ही है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत इक्वली है, जो भी ये करेगा ये एक ही पॉइंट में वो अलग है, स्पेस में उसकी अरेंजमेंट अलग है। दूसरा उसका जो मैंने पोलरीमीटर में दिखाया हुआ है उसका जो ओरिएंटेशन है ना वो भी सेम है, लेकिन उसकी साइन डिफरेंट है, साइन ऑपोजिट है। लेकिन उसका क्या है प्रॉब्लम कि जैसे मैं डी ग्लूकोज मैंने आपको आपने देखा होगा कई बार कि ग्लूकोज का जो आपने पाउडर देखा होगा, राइट। तो व्हाइट कलर का होता है, तो ये भी व्हाइट कलर का होता है, ये भी स्वीट है, ये भी स्वीट है, लेकिन ये हमारे बॉडी में जाके अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस कर सकता है। ये हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए प्रोटीन्स, यानी हमारे पास एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ है। वो एमिनो एसिड भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो वो उसके साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। यानी ये हम खा सकते हैं, हमें स्वीट टेस्ट भी आएगा, लेकिन कुछ भी कैलोरी वैल्यू मुझे नहीं देगा। तो उसको हम शुगर फ्री में कर सकते हैं। फिर शुगर फ्री के लिए हम यूज कर सकते हैं एल माइनस ग्लूकोज को। तो ये जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे आपको डिस्कस करना था कि वो कैपिटल डीएल क्या है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैपिटल डीएल की एक लिमिटेशंस आपको पता है क्या है। लिमिटेशंस, डीएल की लिमिटेशंस क्या है आपको पता चले कि जिसके पास OH होगा तो ही हम डीएल समझा सकेंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट में हम समझा सकते हैं, लेकिन एमिनो एसिड्स में फिर से लफड़ा होगा, वो NH2 का प्रॉब्लम आएगा। तो वहां पे उसने कुछ चेंज किया हुआ है कि OH के बजाय आपके पास NH2 हो तो भी चलेगा, लेकिन एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों के बाद किसी में भी हम कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशंस लगा सकते नहीं है, ठीक है। तो ये उसका लिमिटेशंस है, लेकिन हम अभी हम लिमिटेशंस की बात यहाँ पे बहुत करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो डीएल का तो मेरा एक पॉइंट्स मुझे आपको दिखाना था, आपको समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे रखाया हुआ है। फिर अभी मैं एक आपको और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। अभी हम जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वही सेम पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ। अभी मेरा पॉइंट है 14.1.6 का पॉइंट्स मेरा चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मेरा जो अभी मोटिव है ना वो क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर का मोटिव है मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ये मुझे देखना है, लेकिन हमें इसके पास जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, उसके पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें क्या लिमिटेशंस मुझे मिल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका जो हमने बेयर ने ओपन चेन स्ट्रक्चर्स दिया था, लेकिन ये स्ट्रक्चर में कहीं उसमें उसको ड्रॉबैक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो ड्रॉबैक्स हम स्टेप बाय स्टेप्स हम लेने जा रहे हैं। वी नो दैट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शंस, बट येट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द सम फैक्ट्स, राइट। वो जो सम फैक्ट्स क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास डी है जो प्लस है ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो डी प्लस ग्लूकोज है ना, वो डज नॉट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स
रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड होने के बावजूद भी कहीं रिएक्शन से वो डी ग्लूकोज नहीं दे पा रहा है। हमें मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डी ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ वो रिएक्शंस कर रहा था। इससे तो हमें पता चला कि इसके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ अभी इसमें क्या 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 दिक्कत आ रही है, आप देखिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज है ना, वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो एडिशन रिएक्शंस करना चाहिए, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, वो नहीं दे पा रहा है। हमें मालूम है when sodium bisulfite it reacts with aldehyde as well as ketone and first they gives the addition product. Even though we know that the glucose having a aldehyde group, but it does not form an addition product with sodium bisulfite. ये पहली दिक्कत है। क्यों नहीं है मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा। अभी तो मैं पहले क्या है आपको सस्पेंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि मेरे पास जो ग्लूकोज है, राइट, जो ग्लूकोज है, देखिए आप फिर से, ये जो ग्लूकोज है वो 2,4-डाइनाइट्रो डेरिवेटिव्स, यानी इसकी मुझे देखिए ना 2,4-DNP जो हम दिखाना चाहते हैं, DNP डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो भी नहीं दिखा पा रहा है, राइट, एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्कीफ बेस। ये दूसरा ग्लूकोज है ना, वो स्कीफ बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। हमें मालूम है ये जो स्कीफ बेस है, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन दे पा रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन अपनी प्रोसेस कर रहा है, इवन दो ग्लूकोज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन ये रिएक्शंस नहीं कर पा रहा है। ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी क्या एल्डिहाइड है या नहीं है, क्या है, क्योंकि आगे तो ब्रोमीन वाटर के साथ वो दे पा रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरा क्या है, देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ NH2OH टू फॉर्म एन ऑक्साइन, ठीक है, वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ऑक्साइन बना रहा है। बट जो हमने दिखाया था लास्ट लेक्चर में, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ठीक है, हमने किस तरह से बनाया था, ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्रेट, 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, सो एसिटाइलेशन रिएक्शंस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। लेकिन ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है ना, वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ काम नहीं कर पा रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ऑक्साइन बना रहा है, यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका ही ऑक्साइन बनेगा। इवन दो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ऑल्सो हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन वो ऑक्साइन बना नहीं पा रहा है। तो क्या दिक्कत है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तीसरा प्रॉब्लम अभी हम शुरू कर रहे हैं। देखिए ये थर्ड पॉइंट है ना, बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं, D प्लस ग्लूकोज, आप जो ग्लूकोज देख रहे हैं ना, वो भी एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। आपको पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? D प्लस ग्लूकोज है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में दिखाई दे रहा है, यानी ग्लूकोज में भी 2 है, अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, यानी उसमें भी 2 है। हमें मालूम है ग्लूकोज भी 2 है, कैपिटल D L, और जो डी की बात कर रहे हैं उसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है। वो 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है कि भाई इसके पास अल्फा डी ग्लूकोज भी है और बीटा डी ग्लूकोज भी है? देखिए मैं आपको थोड़ी अच्छी तरह से एक अलग बात करना चाहता हूं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिए एक ग्लूकोज का पाउडर है, मेरे पास एक पाउडर है, ठीक है। वो पाउडर मैंने 500 ग्राम्स का जो ग्लूकोज का पैकेट आता है ग्लूकोन डी का, वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो वो इस तरह से होता है कि उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में साथ ही होते हैं,
देखिए ये सपोज कि मैं फॉर एग्जांपल ऑरेंज वाला है वो अल्फा है और ब्लू वाला है वो बीटा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी दोनों साथ में ही है, हमें पता नहीं चल रहा है सॉलिड फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ इस तरह से करूंगा कि उसका क्रिस्टलाइजेशन हो और दोनों क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो ही हमें पता चल पाएगा कि दो है। तो उसका इस तरह से हम कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये जो कंपाउंड है उसको मैंने अल्कोहल में उसका सॉल्यूशंस बनाया हुआ है। तो अल्कोहल में क्या हुआ कि ये जो मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है ना वो इसमें सॉल्यूबल हो गया, ये इसमें सॉल्यूबल नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे? अल्कोहल में। तो मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, फिर उसको फिल्टर करूंगा, फिल्टर कर में ये ऊपर नहीं रहेगा, ये फिल्ट्रेट में निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ये फिल्ट्रेट में है। अभी फिल्ट्रेट को मैं अच्छी तरह से क्रिस्टलाइजेशन करके मैं ये निकाल सकता हूं, तभी मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। सेम वे दूसरा फिर से हम दोनों ले रहे हैं, एक मैं उसमें पिरिडीन डाल रहा हूं, तो पिरिडीन में ये सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल नहीं है। तो इस तरह से भी हम दोनों को अलग कर सकते हैं। वो तभी हमें मालूम पड़ा कि इस तरह से क्रिस्टलाइजेशंस करने की वजह से या क्रिस्टलाइजेशन सर्टेन टेम्परेचर की करने की वजह से मुझे ये दोनों जो फॉर्म्स है वो दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूं। मैं अभी बोला आपको कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा है, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, राइट, वो है ना, वो क्वाइट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है वो बहुत अच्छी तरह से एक्वियस सॉल्यूशन में क्या है, स्टेबल है, बट ईच फॉर्म्स स्लोली चेंज इनटू द सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अभी मैं आपको थोड़ा अलग तरह के समझाना चाहता हूं। ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है वो जब मैंने एक्वियस सॉल्यूशंस, मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में लिया हुआ था, तो वो क्रिस्टलाइज हो पा रहा है, वो क्रिस्टलाइज्ड एट नियर अबाउट 303 केल्विन में उसका क्रिस्टल मुझे मिल सकता है, ठीक है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, नियर अबाउट 419 केल्विन, किसका, अल्फा का, राइट। और उसका स्पेसिफिक रोटेशन है, हम बोल रहे हैं ना वो पोलरीमीटर में, उसका स्पेसिफिक रोटेशंस मुझे मिल रहा है 111 डिग्री डेक्स्ट्रो प्लस। कहां पे मिल रहा है, इन अ फ्रेशली, जैसे मैं उसका एकदम अभी फ्रेशली एक्वियस सॉल्यूशंस बनाया हुआ है, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशंस बनाया हुआ है। फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, मैंने आपको बोला कि मेरे पास जो ग्लूकोज का पाउडर था इसमें ये दोनों है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसमें पानी डाल के या अल्कोहल में उसको डिजोल्व किया, तो ये अल्कोहल में ये डिजोल्व हो पा रहा है। कौन सा वाला, ये ऑरेंज वाला यानी अल्फा, ये नहीं हो पा रहा है, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि फिल्टर में मैं करूंगा तो वो तो ये जो फिल्टर पेपर में यहाँ पे रह जाएगा, ये दूसरा फिल्ट्रेट में निकल आया है। फिर मैं उसमें से पानी निकाल दूंगा तो मुझे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के क्रिस्टल मिलेंगे। वो जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के जो क्रिस्टल मिलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, और उसको मैंने जैसे उसमें भी फिर से पानी डाला तो उसका फ्रेशली एक्वियस सॉल्यूशंस था, उसका 111 डिग्री प्लस मुझे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेम प्रॉब्लम में यहाँ पे दिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, ये जो कौन सा ग्लूकोज मैं बता रहा हूँ, बीटा डी प्लस ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर above 371 केल्विन, वो 371 केल्विन से ऊपर करेंगे तो ही क्रिस्टलाइज हो जा पाएगा, तभी मुझे बीटा डी प्लस ग्लूकोज मिल सकता है। उसका भी मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 423 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट है, नियर अबाउट है, एंड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन, जो हमने पोलरीमीटर में दिखाया हुआ था। ये जो स्पेसिफिक रोटेशन हम देख रहे हैं वो क्या मुझे मिल रहा है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 19.2 डिग्री इन अ फ्रेशली एक्वियस सॉल्यूशन। आपको पता चला मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं। अभी ये फोर्थ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप देखिए फोर्थ प्रॉब्लम,
ये जो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कुछ हो रहा है इसमें। देखिए ये जो मैंने अभी दिखाया, बोथ अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी ग्लूकोस अंडरगो म्यूटारोटेशन। ये एक फिनोमिना है, क्या है हम अभी देखेंगे। म्यूटारोटेशन इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये म्यूटारोटेशन है ना, इसकी आइडेंटिटी है कार्बोहाइड्रेट फैमिली है ना, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ये ग्लूकोज। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मेरे पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था, इसका पाउडर मैंने अलग किया हुआ था। मैंने आपको अभी भी आपको बताया उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है 298 केल्विन पे, वो मुझे क्या मिल रहा है, 111 डिग्री मुझे मिल रहा है। जैसे ही मैंने एक्वियस सॉल्यूशन में उसको डाला, मैंने जैसे ही उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में 111 था, फिर वो 111 गिरता गया और वो कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम उसमें चालू हो गया है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर चालू हो रहा है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर से वो कम होके उसका जो अल्फा है, स्पेसिफिक रोटेशन है, वो गिर के स्टेबल हो रहा है 52.5 डिग्री पे प्लस। दूसरी और क्या हो रहा है, आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, उसका जो आप अल्फा देख रहे हैं 298 केल्विन पे, वो प्लस 19.2 डिग्री है। यानी क्या हुआ, देखिए आप क्या हो रहा है, the crystalline form of alpha D plus glucose and beta D plus glucose are quite stable in aqueous solution, ठीक है, but each form slowly change into the same equilibrium mixture, ठीक है। वो अल्फा क्या हुआ, पानी में जैसे डाला ना तो वो कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बीटा की ओर जा रहा है। इस तरह से बीटा ने मैंने पानी में फ्रेशली सोल्यूट तो वो अल्फा में जा रहा है, और दोनों के बीच में एक ऐसा इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है कि वो 52.5 पे मुझे दिखा रहा है। तो उसने क्वांटिटेटिवली भी देखा, ये 36% अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो पा रहा है, और बाकी का जो 64% है वो बीटा का मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो एविडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, फर्स्ट से, तो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फेज दैट दिस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज falls gradually from 111 to 52.5 with time, and that of beta D plus glucose increase from 19.2 to 52.5. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको यहाँ पे इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि दिस spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called म्यूटारोटेशन, ठीक है। तो हम उसको म्यूटारोटेशन बोल रहे हैं। एक तरह से स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है वो चेंज, स्पेसिफिक रोटेशन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, तो उसको म्यूटारोटेशंस की तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। और एक भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा है D प्लस ग्लूकोज forms two isomeric methyl glucosides। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड होता है, जैसे मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, तो वो मुझे मालूम है 2 मोल मिथेनॉल के साथ
ड्राई HCl में मैंने जैसे इसका रिएक्शंस किया था, हमने पढ़ा था एल्डिहाइड में, तो वो कहाँ पे चल एसीटाल कंपाउंड बना रहे हैं, वो हेमी एसीटाल और बाद में एसीटाल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एसीटाल कंपाउंड मिल रहा है, यानी 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ अल्कोहल। लेकिन मेरे पास जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6 है, तो वो एक ही मोल मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कर पा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और वो कन्वर्ट हो रहा है C6H5O11 मींस O5 OCH3 में वो चला जा रहा है और पानी निकल रहा है। सो ये जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है मिथाइल अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोसाइड्स में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम, दिक्कत क्या आ रही है ना, देखिए बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। एल्डिहाइड्स नॉर्मली रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल पर मोल ऑफ एल्डिहाइड टू फॉर्म एन एसीटाल, यानी 1 मोल और 2 मोल का रिलेशन है यहाँ पे। But D plus glucose when react with a methanol in presence of dry HCl gas reacts only 1 mole of methanol per 1 mole of glucose to form a mixture of 2 methyl D glucosides like methyl alpha D glucosides and methyl beta D glucosides। दोनों के specific rotations भी अलग अलग है। So it means that the 2 methyl D glucoside behave as a full acetals like acetals। ये जो है यहाँ पे जो 2 मिथाइल मुझे मिल रहे हैं वो एक एसिटाल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। सो दिस मिथाइल ग्लूकोसाइड्स आर फॉर्म्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस बट आर हाइड्रोलाइज्ड बैक टू ग्लूकोज एंड मिथेनॉल अंडर एक्वियस एसिडिक कंडीशंस। फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो ग्लूकोसाइड है ना वो टॉलेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशंस के साथ रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है और NH2OH का भी प्रोसेस नहीं दे पा रहा है। देखिए इसमें दिक्कत क्या आ रही है, आप देखिए ये है ना टॉलेंस जो है उसके साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये फैलिंग सॉल्यूशंस होता है उसके साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, वो NH2OH के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस दिखा रहा है। तो ये काफी हमें यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पूरी डिटेल्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरह से कर पा रहे हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।